آج ہم بات کریں گے تصور مرشد کامل کی ایک خاص حقیقت اور راز کیا ہے۔ آخر مرشد کامل جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کا تصور کرنے کا حکم کیوں ہے اور اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کا راز کیا ہے۔ یاد رکھے، جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا، اس کے چہرے کا خاکہ خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ وہ بندہ خود بخود آنکھوں کے سامنے، اگر مرشد کامل سے اتنی محبت اور عشق ہوگا نا، تو مرشد کامل کی تصویر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کسی عاشق نے کہا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ تو جب دل کی آئینے میں مرشد کی صورت بس جاتی ہے، پھر بندے کے پورے وجود میں مرشد ہی مرشد بس جاتا ہے۔ کیونکہ میں نہیں گیا، یہ راز ہے دعوت القبور کا جو اس فقیر نے کھول دیا ہے۔ دعوتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں جی، میں جا رہا ہوں، تو نہیں جانا، تیرا مرشد جائے۔ پہلے تصور مرشد اتنا کر کہ تجھ پر مرشد کا رنگ چڑھ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تصور مرشد کامل کی ایک خاص حقیقت اور راز کیا ہے۔ آخر مرشد کامل جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کا تصور کرنے کا حکم کیوں ہے اور اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کا راز کیا ہے۔ آج اسی موضوع پر بہت ہی خاص گفتگو کی جائے گی، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کا تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تصور اسم اللہ ذات جن کا جم نہیں رہا، مرکوب نہیں، نقش نہیں ہو رہا، ان لوگوں کے لیے تو یہ میرا بیان انشاءاللہ مشعل نور ہے۔ وہ سنیں گے تو انشاءاللہ اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کا تصور جاری ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں تصور مرشد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں ان کو بھی اس میں جواب مل جائے گا۔ اور اگر ہم طریقت کو دیکھتے ہیں، فقر کو دیکھتے ہیں، راہ سلوک کو دیکھتے ہیں، تو اس راہ سلوک کے سفر یعنی اللہ تک پہنچنے کا جو مبارک سفر ہے، اس میں کامل مرشد کی ضرورت اتنی ضروری ہے کہ جب تک بندہ کسی کامل مرشد کا بائت نہیں ہوتا، اس کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، اس کی اتباع نہیں کرتا، تو بندہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے پہلے تو جان لے کہ اللہ کا جو ولی ہے، دوست ہے، پیر ہے، مرشد ہے، اس کو جب ہم اپنا مرشد پکڑتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث کیا ہے۔ ایک حدیث شریف جو حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب سچا یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی معرفت کو حاصل کرے، یہ میں حدیث کا پورا مفہوم سنا رہا ہوں، تو اس طالب کو چاہیے کہ وہ کسی کامل مرشد کی بیعت کرے۔ مرشد کے معنی راہ دکھانے والا، کسی راہ دکھانے والے رہنما کو اپنا امام، اپنا پیشوا مانے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، نہیں پہنچنا تو ٹھیک ہے، باقی عبادات تو چل رہی ہیں، جنت تک تو چلے جائیں گے۔ اگر خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، عرفان کو حاصل کرنا ہے، تو میرے بھائیو یاد رکھے، گرو کے بغیر، مرشد کے بغیر، استاد کے بغیر کبھی بھی آپ اللہ کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی یعنی عرفان میں نہیں، خدا کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ خود کو دیکھنا ہو تو آئینے کی ضرورت ہے۔ المومن مرآۃ المومن، حضور پاک نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آپ جب اس آئینے میں دیکھو گے، مرشد والے آئینے میں، تو آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا۔ تو آپ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر پھر اپنے آپ کو صاف کرو گے، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ المومن مرآۃ الرحمن، جب آپ کا ظاہر باطن پاک ہو جائے گا نا، دل پاک ہو جائے گا ماں سوا اللہ کے، تو پھر المومن مرآۃ الرحمن، پھر مومن خدا کا آئینہ ہے۔ پھر اسی یعنی انسان والے آئینے میں بندے کو خدا نظر آ جائے گا۔ اگر بندہ اپنے آپ کے باطن کو تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ ان سارے طریق کو سیکھنے کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہے، کیونکہ کامل پیر ہی آپ کو ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس سائیں محبوب پیر نے تو کوئی چیز رکھی نہیں، الحمدللہ۔ حضرت غوث اعظم اور حضرت سلطان باہو اور حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کا سارا علم عرفان جو الحمدللہ ہم نے بیان کر دیا۔ لیکن آج جو خاص راز بیان کرنا ہے تصور مرشد کا، وہ اگر آپ اس تصور کو قائم کر لیں گے
तो जिन लोगों को मैंने सुना, वो तो एक बंदे से मेरा राब्ता हुआ, उसको 25 साल हो गए, कहते हैं मुझे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हुए तो मेरा इसमें ज़ात नहीं चला। कोई कह रहा है मुझे 10 साल हो गए, इसमें अल्लाह ज़ात मेरा नहीं चला। क्यों नहीं चला? हम गलती करते हैं। क्या हम डायरेक्ट खुदा के इसम की जो है वो अपने ऊपर इसका तसव्वुर शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमने डायरेक्ट ही मुर्शद को, रसूल पाक को भी इससे अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह निकाल दिया और अल्लाह तक रसाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारा वजूद उसको करार को ना पकड़ सका इसमें ज़ात के। और बहुत सारे लोग, सोचो इंज कह लो, मैं जिन्ने बंदियां नु मिलिया सोचो तकरीबन 95 बंदों को मैंने देखा वो साइको हो गए, वो हिल गए। उनका इसमें अल्लाह ज़ात करते करते वो कोई इमाम मेहंदी का दावा कर रहा था। एक बंदे से मेरा राब्ता हुआ, वो कहता मैं इमाम मेहंदी से मिल रहा हूँ, इसमें अल्लाह ज़ात करता था, साइको हो गया। वो कोई कह रहा है जी मैं सुल्तानुल फ़क्र हफ्तम या शशम बन गया हूँ। ऐसी बातें जो हैं वो करके वो अपने आप को इसी कह लो खुश फहमी में रख कर वो अपने तई बहुत बड़ा वली अल्लाह बना हुआ, बल्कि वली अल्लाह तो वो छोटा है, वो साइको होकर बहुत अपने आप को सुल्तान बनाकर बैठा है। ये सारी एक महज खाम ख्याली है। तसव्वुर मुर्शद ही आपको इब्तदा से इंतहा तक ले जाएगा और आपका कामल मुर्शद आपको कभी रास्ते में बहकने नहीं देगा, गुमराह नहीं होने देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने इसकी पैरवी करनी है, इस मुर्शद कामल की इत्तबा करनी है, इसके साथ राह सलूक के सफर पर चलना है। जब आप अल्लाह के वली के साथ सफर करोगे तो अल्लाह का वली जो होता है ना, मुर्शिद कामिल, वो रास्ते के सफर के खतरात को जानता है कि यहाँ पर क्या खतरा है तौहीद के रास्ते में, यहाँ पर क्या वसवसा है, यहाँ पर क्या शैतानी अमल है, तो फिर वो वहां से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पार गुजार देता है। कामल मुर्शिद जो आपका होता है, उसके बगैर जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मुर्शिद करीम के बगैर कोई बंदा भी खुदा तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वो 100 साल इबादत करता बूढ़ा होके मर जाए। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जददा मुर्शद मिलिया बाहू मेरे छुट्टे सब अजाबे हूँ। और या एक जगह आपने अपना कौल भी लिखा है, आपका कौल नूरुल हुदा शरीफ में है। सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, कोई बंदा रियाजत के पत्थर पर सारी जिंदगी सर फोड़ता फोड़ता मर जाए, यानी रियाजत मैंने मेहनत करता रहे, और मुर्शद ना हो तो वो कभी भी खुदा तक नहीं पहुंच सकता, वो ऐसे ही मर जाएगा। अल्लाह की पहचान कामल मुर्शद के ही जरिए अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। हो अल्लाह का वो कामल वली। जब भी मैं कामल की बात करूं समझ लीजिएगा मैं किस वली अल्लाह की बात कर रहा हूं, कि वो वली अल्लाह जो खुदा के हो चुके हैं, खुदा उनका हो चुका है और उनके ऊपर सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है। तो कामल मुर्शद का तसव्वुर, ये तसव्वुर तो पिछले सारे मजहबों में चलता आ रहा है। याद रखें, कोई हिंदुइज्म है, कोई बुद्ध मत है, कोई इस्लाम है, या जितने भी ये ईसाईयत है, क्रिश्चियन, जितने भी ये मज़ाहब है ना, इनमें तसव्वुर ज़रूर चलता है, ज्ञान, मुराकबा। और इसी मुराकबे से ही वो अपने अंदर पावर और रूहानी ताकत को पैदा करते हैं। फिर वो पैगम्बरी अल्लाह ताला उनको अता फरमाता रहा कि जो जितना अल्लाह ताला के साथ अपनी मोहब्बत और अपना इश्क करता रहा, अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को, यानी 1,24,000 को पैगम्बरी अता फरमाई। और हमारे नबी अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर अल्लाह पाक ने फरमाया। पैगम्बर मैंने पैगाम देने वाला, और उसी की किताब को और उसी की शख्सियत को क़यामत के लिए हायात ज़ाब्ता, ये आपके लिए मशअल नूर है, मशअल हिदायत है, रसूल पाक की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तसव्वुर पिछले किताबें आप पढ़ लें, बुद्ध मत पढ़ लें, या आप रामायण गीता वगैरह जो पुराने अहदनामे तौरात ज़बूर इंजील, इनमें कुछ हवाला जात मिलते हैं कि ये कैसे खुदा का तसव्वुर करते थे, कैसे खुदा को मानते थे, ज्ञान करते थे। और इसी तरह इस्लाम के अंदर भी जो नमाज है, ये भी सारी तसव्वुर का नाम है। मेरे नबी ने फरमाया, नमाज ऐसे अदा करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो अल्लाह को देखने का क्या मतलब है कि आप अल्लाह को देख रहे हो, गोया तसव्वुर कर रहे हो उस ज़ात का। और हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन मेरे बादशाह सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अल्लाह को देखने से मुराद है इसमें अल्लाह ज़ात को देख रहे हैं, क्योंकि खुदा इब्तदा से इंतहा तक अपने इसम के जरिए ज़ाहिर हुआ है।
तो ये नमाज भी एक तरह का मुराकबा है कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, ये समझो अल्लाह आपको देख रहा है, यानी मुकम्मल इसको फना फिल्लाह और बका बिल्लाह की मंजिल कहा जाएगा। तो ये सारी यानी इस्लाम के अंदर है मुराकबा और नमाज, जिससे हम कहा जाता है, यह तसव्वुर है। और ख़ुद रसूल पाक गार हिरा के अंदर 40 साल इसी तसव्वुर को करते रहे। अब वो तसव्वुर क्या था, वो तसव्वुर करने वाला जानता है या खुदा जानता है, लेकिन इसको आप कह लें, इस तसव्वुर से आप कैसे खुदा तक पहुंच सकते हैं। आइए इन राजों में से, इन सारी बातों में से मैं लुबे लुबाब आपको बयान करता हूं कि आप सबसे पहले किस चीज़ हस्ती का तसव्वुर करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप जिसके बैत हुए हैं, जो आपका पीरो मुर्शद है, जो आपका साईं है, आपका रहनुमा रहबर है, आपने सबसे पहले उसका तसव्वुर बांधना है। रोज़ाना इसकी मशक करनी है कि मैं नहीं हूँ, मेरा मुर्शद है, और रोज़ाना ज्ञान में हाथ बांध कर बैठना है। 7 कलमे का जिक्र जारी रखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा दाएं कंधे पर और इल्लल्लाह अपने दिल पर कहना है। ला इलाहा के लफ्ज़ तर्जमे पर भी गौर रखना है, ला इलाहा कोई नहीं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इस पर गौर भी रखना है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, और अपने ऊपर अपने मुर्शद का तसव्वुर बांध लेना है। पीरो मुर्शद की खूबसूरत सी तस्वीर अपने घर में लगाएं। बास कहते जी तस्वीर लगाना हराम है, तो ये अलहदा टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं पूरी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह के प्यारों की तस्वीर हराम नहीं होती, याद रखें। ये तस्वीर नहीं, वो तो कुछ और तस्वीरें थी मुशरकाना जिसको हुजूर ने हराम कहा था। ये मेरा मौजू नहीं है। अपने मुर्शद की तस्वीर मुबारक को देखें और उसका तसव्वुर बांधे कि मैं नहीं हूँ, मेरा मुर्शद ही है। 7 कलिमा शरीफ का नफी सबात करें और यह तसव्वुर करना है मेरा चेहरा, मेरा पूरा वजूद मेरे शेख का बन चुका है, मैं हूँ नहीं, मेरा पीर है। और ये सिर्फ तसव्वुर नहीं करना, अपने पीर पेशवा से मोहब्बत भी इतनी करनी है। मोहब्बत होगी तो तसव्वुर होगा। याद रखे, जिससे बंदा मोहब्बत करता है ना, उसके चेहरे का खाका खुद ब खुद सामने आ जाता है। वो बंदा खुद ब खुद आंखों के सामने, अगर मुर्शिद कामल से इतनी मोहब्बत और इश्क होगा ना, तो मुर्शिद कामल की तस्वीर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी आशिक ने कहा है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। तो जब दिल की आईने में मुर्शिद की सूरत बस जाती है, फिर बंदे के पूरे वजूद में मुर्शिद ही मुर्शिद बस जाता है। मुर्शिद का तसव्वुर रोजाना आधा घंटा कम से कम, और ये तसव्वुर करना मैं नहीं मेरा पीर है, साथ जिक्र करना, साथ ये सोचना क्या है, अब सोच को ही तो पाक करना है। ये जब सोचना है कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शिद है, इसका तसव्वुर बांधना है। साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, ऐसे आपने जिक्र करना है। और ये सोचना कि आप ये आप सुनिएगा, हमने सोचना ये कि मेरा मुर्शिद अल्लाह का वली है, अल्लाह की उस पर खास नजर करम है, तो वो नजर करम मुझ पर भी हो रही है। जो मेरे मुर्शिद कामल के ऊपर रहमतें बरस रही हैं, वो मुझ पे भी बरस रही हैं। जो मेरे मुर्शिद कामल को बातन में मरातब मिल रहे हैं, वो मुझे भी मिल रहे हैं। जो मेरे मुर्शिद के सीने में अल्लाह इल्म डाल रहा है, वो मुर्शिद के सदके मेरे सीने में भी डाल रहा है। ये तसव्वुर है, इसको मुराकबा तसव्वुर कहा जाता है। जो बंदा अपने पीरे कामल का तसव्वुर बांधता है, उसके बातन के जो दिल की एक तार होती है, वो रूहानी नूरी तार होती है, वो उसके मुर्शिद के दिल से जाकर मिल जाती है, कांटेक्ट हो जाता है। मुर्शिद के दिल में अल्लाह होता है, मुरीद के दिल में जिक्र होता है, इसम होता है। तो इस तरह वो अल्लाह का जिक्र मुरीद के दिल में जारी हो जाता है। मुरीद जब मुर्शिद का तसव्वुर करता है, मुर्शिद के बातन को फौरन खबर हो जाती है। ये तो सुल्तान बहू फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है, उसके 70,000 बातन होते हैं, यानी बातनी वजूद होते हैं। आप वली अल्लाह को याद करेंगे, वली अल्लाह को खबर हो जाएगी कि मुझे कोई याद कर रहा है। और जब आप अपने पीरो मुर्शिद को याद करेंगे, तो मुर्शिद को भी पता चल जाएगा मेरा मुरीद, मेरा बालक, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। वो फौरन अपनी बातनी परवाज से उसकी मदद के लिए पहुंचेगा, क्योंकि मुर्शिद के अंदर अल्लाह के नूर की वो नूरी हजूरी रूह बनी होती है, जो फौरन अपने मुरीद की मदद के लिए पहुंचती है। तो मुर्शिद का तसव्वुर करने से आपका 24 घंटे का राब्ता आपके पीर से हो जाएगा। जो बंदे कहते हैं, मुझे सवाल भी किया था एक हमारा मुरीद अशहब ने, सरवरी कादरी ने मियाँ चन्नू से, अशहब पूछ रहा था कि जी हम अपने मुर्शिद से इधर बैठ के राब्ता कैसे कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका जो तमाम सूफिया ने बयान किया है, वो तसव्वुर है। आप जब अपने पीर का तसव्वुर बांधेंगे, ख्यालात को अपने मुर्शिद की तरफ मरकूज करेंगे, फौरन मुर्शिद कामल को खबर हो जाएगी और आपका तसव्वुर मुर्शिद कामल पर बैठ जाएगा
और जो मुर्शद पर फिर करम नवाजियाँ होती हैं आप पर भी हो जाएंगी। अच्छा, एक और राज आपको बताता हूँ, बड़ी ख़ास बात है। हम जाते हैं किसी दरबार पर, मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, किसी वली अल्लाह को मिलने जाते हैं, किसी मज़ारात पर जाते हैं, हम जाते हैं, हम गुनहगार लोग हैं, हमारा देखना गुनाह, बोलना गुनाह, झूठ है। अब मैं जाऊंगा तसव्वुर मुर्शद कामिल करके अपने घर से ही कि मैं नहीं हूं, मेरा पीरो मुर्शद जा रहा है, हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी जा रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं नहीं जा रहा, मेरे पीर जा रहे हैं, और आपने इसका जितना तसव्वुर कर सकते हैं करना है। तो जब आप दाता साहब जाएंगे ना, तो दाता अली हजवेरी आपको वेलकम करेंगे, क्योंकि आप नहीं आए। आपके बातन को जब दाता साहब ने देखा तो वो मुर्शिद कामिल था। वो मुर्शिद कामिल यानी आपके बातन में आपका पीर बैठा हुआ था, जिसका आप तसव्वुर मानते हैं। याद रखें, तसव्वुर खलकत हो जाता है। जिस चीज का आप तसव्वुर ज्यादा करेंगे वो चीज तख्लीक हो जाएगी। आप जब अपने मुर्शिद का तसव्वुर करना शुरू कर दोगे, एक दिन मुर्शिद हो जाओगे। बाबा फरीद जाते हैं, बाबा फरीद वेलकम करेंगे, आपको मिलेंगे, हर हाजत पूरी होगी। लोग पूछते हैं दावत का कोई आसान सा तरीका बता दे। अल्लाह की कसम, इस फकीर ने यही दावत पढ़ी है। जिस भी वली अल्लाह के मजार पर गया, मुर्शिद का तसव्वुर बांध कर गया, अहले मजार ने खुद इस्तकबाल किया, अहले मजार ने मुलाकात की, दुआओं को मुस्तजाब किया, अपनी ज़ियारत भी बख्शी, मुश्किलात को हल भी कर दिया। क्योंकि मैं नहीं गया, ये राज है दावतुल कबूर का जो इस फकीर ने खोल दिया है। दावतें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या गलती करते हैं, हम जाते हैं जी, मैं जा रहे हैं, तू नहीं जाना, तेरा मुर्शद जाए। पहले तसव्वुर मुर्शद इतना कर कि तुझ पर मुर्शद का रंग चढ़ जाए। बुल्ले शाह मुर्शद वाला रंग किसे किसे नू चढ़दा, और जब मुर्शद का रंग चढ़ जाता है ना, फिर वो कहना पड़ता है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, जब हम मौला अली को देखते थे वो हूबहू मोहम्मद मुस्तफ़ा लगते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुर्शिद का रंग चढ़ता था। हसन बसरी को देखते थे वो अली शेर खुदा लगते थे। मौला हसन हुसैन को देखते थे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा लगते थे। जब लोग फकीर नूर मोहम्मद साहब को देखते हैं तो सुल्तान बाहू नजर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपने मुर्शिद की जात में इतना फना हो जाएं कि जब दावत पढ़ने के लिए जाएं तो आप ना जाएं, आपका मुर्शिद जाए, जाते ही मुलाकात हो जाए, क्योंकि आप नहीं गए, आपका पीर गया है। तो तसव्वुर मुर्शिद आप 24 घंटे रखें। अल्लाह की कसम, नबी वली की ज़ियारत रोजाना आपको होंगी, क्योंकि आप नहीं हैं, आपका पीर है। और ये तसव्वुर ही है सारी कायनात में। जितना तसव्वुर कभी कर लोगे, मजबूत कर लोगे, उतना ही आप पर अल्लाह की करम नवाजियां होंगी, अल्लाह की रहमतें होंगी। तो तसव्वुर मुर्शिद को सबसे ज्यादा जरूरी कर ले मेरे भाइयों। तसव्वुर मुर्शिद आपको इब्तिदा से इंतहा तक लेकर जाएगा, खुदा बंदे से खुदा तक पहुंचाएगा। आपका मुर्शिद का तसव्वुर आप पर अल्लाह की रहमतें बरसा देगा। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह हम सबको तसव्वुर मुर्शिद कामिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।